हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। इसमें आज हम करेंगे द गुप्तास एंड देयर इज अ सक्सेसर इज एडी 300 टू द 750। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम इसमें गुप्त वंश था उनके उत्तराधिकारी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बिहार के बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये हर जगह के लिए विस्तृत रहेगा क्योंकि इसमें हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम समझेंगे। साथ में आपके समक्ष जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है शब्दों का डिस्प्ले होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो सदैव आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a most important is a chapter discussion here, the Gupta and their successor. There is the most important. The important here a Gupta times a administrative system. What is the administrative system of the Gupta Empire? A compare of the Mauryan, there is the AD of 300 750. There is the most important times on here. In the Mauryan period, the political authorities was concentrated in the hand of the king. There is a noted point here. The Mauryan period, the political authorities was concentrated in the hand of the king. But the Gupta administration was decentralized other nature. The Gupta is a administration was decentralization in the nature. It means that a federatrix is a local king and a small chief ruler large part of the empire. I have also discussed the smaller chief on the large part of the empire, and there is a prominent title such as the Mahadiraj, Paramutaka, and the Parameswara, etc. were adopted by the emperors of Guptas. And this is a lesser ruler, and honored there is a name with the title like a Raja and Maharaja. There is a most important for a administrative system in a Gupta empire. The kingship was a normally hereditary, their king was the focus on administration. The prince's ministers and advisors assist them. That is most important, and the princes were also made the viceroy of the provinces. And the provinces is were known as the Diksha, is the Rakstra, and the Bhaktis, and there is the head was called is the Uprika. The province where is divided into the number of districts is called Pradesha and the Vishya. There is a most important here a Pradesha or a Vishya. The administrative head of the Vishya was known as the Bishpati. There is a known as the Bishpati. The Vishya where is a further divided into the villages, and the villages is the head man is called to Gram Adhyaksh. Look it after their affair of the village, and with the help of the village elder, the artisans and the merchant took on the active part in the town administration. And during the Gupta period, the Gupta is a bureaucracy was a less elaborate and the compared that of the is a Mauryas. The high level of center officer under the Guptas were called the Kumar Matyas. Kumar Matyas is the most important here and important functionary like a Mantri, Senapati, where also is a security from that. And the cadet administrative posts were not only hereditary, but when our several office were combined in the hand of the same person, as in the case of Harisena.
The composer of their Allahabad period inscription of the Samudragupta, he has been described as a Mahadandanayak. The Mahadandanayak means a chief judiciary officer. There is a Mahadandanayak, a chief judiciary officer, as well as the Mahasandhi Vargika is a ministry for a bar and places. There is a most important here. The ruler himself of the appointed high-ranking officer, but the hereditary of nature of the post must has a weakened the royal control over to administration. There is a most important here, a weakened the royal control over to administration. During the Gupta period, is a land tax increases considerably. There is a land tax called Bali, and the various form of 1/4 to the 1/6 of the totals produce. Two new agricultural texts that has appeared in a Gupta inscription on the Aprikara and the Udarana. There is a two is most important here. However, there is an exact of nature in the not clear. In addition to the peasant had to meet the demand of the feudatories, and they also had to feed the royal army went to the pass from the villages, and the villagers were also is subject to the other force. The labor is a visti. The judicial system was of far more development under two Gupta rulers than the earlier time. For the first time, the civil and criminal law were clearly is demarcated, and the debtor is connected with the various types of property and were considered is a civil law. Elaborate law were to lay down about inheritance, the thief and the adulteress feel under to criminal law. The king is upheld the is a law of the try to the case with the help of the Brahmins. The guild of their merchant and the artisans were governed by their own law. Harsha is a governed with the empire on the same lines as did the Guptas. And but there is a during his period the administration become a more is decentralized, and there is a number of federates of the grave further. In the Harsha as a time, the officer and the religious person where is a paid the mainly in the land. It is encouraged their system of feudalism which grow much more in the post Harsha period. In the empire of the Harsha, law and order does not be appear to be so well is a maintained. The Hushan is a Tusha as is a twice robbed of all the belonging during his the travel in the India. There is a most important Husantang is a two-time robbed began to the during to the travel of India. On the other hand, Fasi has the folk face no such a difficulty during the Gupta period. There is a most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, जब गुप्ता वंश उनके उत्तराधिकारी के अंतर्गत की गुप्ता वंश में जो उनकी प्रशासन प्रणाली किस प्रकार थी। देखिए, कोई भी अगर कहते राज्य का अगर विघटन होता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है प्रशासनिक प्रणाली का। कहते हैं प्रशासनिक प्रणाली इस प्रकार से हमें गठित करना चाहिए जो कि काफ़ी समय तक जो है राज्य करने के लिए सक्षम बना है। कहते हैं आज जो भाई बंधु क्षेत्रवाद जो करते हैं वो कभी भी शासन करने के लिए लायक नहीं रह जाते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो गुप्ता वंश जो थे और उनके उत्तराधिकारी ने 300 से लेके 375 ईस्वी पूर्व तक जो है अपना दबदबा भारत में बनाए रखे। कहते हैं अगर हम किसी दूसरे एम्पायर के साथ इसकी जो है तुलना करें तो ये बहुत काफ़ी साफ हो जाएगा। अगर हम मौर्य युग में राजनीतिक शक्ति जो था राजा के हाथों में ही केंद्रित थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी। यानी मौर्य युग में अगर आप देखो तो ये सारी शक्तियाँ जो थी राजा के हाथों में केंद्रित थी, किंतु गुप्त शासन में स्वयंता ये विकेंद्र था। यानी ये जो है राजा के हाथों में न होकर जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया था, यानी विकेंद्रित कर दिया गया था, सेंटर के हाथों में दे दिया गया था, जैसे आज के समय में होता है। इसका तात्पर्य जागीर अथवा स्थानीय शासक एवं छोटे मुखिया उनके साम्राज्य के बड़े हिस्से पर शासन करते थे। जैसे अभी मुख्यमंत्री सब होता है अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन करते हैं, उसी प्रकार से जो था शासन प्रणाली जो था हमें गुप्त वंश में भी देखने को मिलता है। तो इसका भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इनका जो है साम्राज्य का विघटन हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा भी था आगे कि हमने जो है तरह तरह के वंश के बारे में हमने पढ़ा था। पोत्रक, मोखरी,
सनेश्वर का पुष्पभीति और वकाटक साम्राज्य, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। कहते हैं ये सारे क्षेत्रीय प्रांत में थे और बाद में जो था इनका रिलेशन कुछ हद तक जो था गुप्ता वंश से बना और ये अपना दबदबा जो है अपने क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और उसी तरह से देखा जाए तो गुप्ता पीरियड के अंतर्गत कोई भी राज्य जीता जाता था तो उसको सिर्फ अपने अधीन कर ली जाती थी। तो ये सारी बातें जो था इनके विघटन का ही कारण भी बना। और कहते हैं इस समय जो बाहरी आक्रमण ने भी इनको तहस नहस करके रख दिया था। लेकिन हम करें यहाँ पर प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत तो कहते हैं कि इसके स्थापत्य जागीर और स्थानीय शासक एवं छोटे मुखिया उनके साम्राज्य के बड़े हिस्सों पर शासन किया करते थे। यानी छोटे छोटे मुखिया जो होते थे जो गुप्त वंश के टाइम में बड़े बड़े क्षेत्रों पर अपना शासन चलाया करते थे। प्रतापी गुप्त शासकों ने जो है महाअधिराज, परमेश्वर जैसी शानदार उपाधि धारण करी हुई थी कि अपने आप को महाराज अधिराज कहते थे, परमेश्वर कहते थे और ऐसी उपाधि अनेक थी। इनके दुर्बल शासकों ने राजा अथवा महाराजा उपाधि से अपने नाम को अलंकृत किया कि हम बहुत ही महान हैं, लेकिन उनकी महानता उनकी कर्म पे नहीं निर्धारित किया। उनकी दुर्बलता ने उनको जो है आगे जो है तहस नहस करके रख दिया। यानी बेशक नहीं वो महाराज अधिराज के जो है उपाधि धारण किया हो, लेकिन ये सारे के सारे दुर्बल थे। और दुर्बल होने के कारण क्या हुआ कि बाहरी आक्रमण हुई या क्षेत्रीय राजाओं ने अपना जो है प्रभुता स्थापित करने में जो देर नहीं किया। सामान्यतः राजपद वंशागत था, यानी अगर देखा जाए तो राजपद जो था वंशानुगत था, यानी एक के बाद दूसरा उसका पुत्र बनेगा, इस प्रकार के जो था उस समय राजपद हुआ करता था। प्रशासन का मुख्य बिंदु राजा ही हुआ करता था और राजकुमार, मंत्री तथा सलाहकार उसकी सहायता किया करते थे। आपको पता ही होगा कि जैसे राजकुमार, मंत्री, सलाहकार उसकी सहायता किया करते हैं, किसको? प्रशासन का मुख्य बिंदु राजा हुआ करता था और राजा के सहायता के लिए राजकुमार, मंत्री और सलाहकार सहायता किया करते। जैसे कि आपको भी पता ही होगा कभी प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होता है और कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऐसा ही उस समय सिस्टम बनाई गई थी। और आपको पता है जैसे कि आपका मुख्यमंत्री होता है, हर प्रांत में होता है, तो वो अपने क्षेत्र के वो खुद ही जिम्मेवार होता है। कुछ इसी तरह से ढांचा जो है गुप्त वंश में भी तैयार किया गया था। कहते हैं प्रांत की बात करें तो राजपूत जो है राजकुमारों के सभी क्षेत्र का राजपाल नियुक्त किया गया था। यानी जितने भी राजकुमार होते थे राजपाल नियुक्त किया गया था, यानी आप कह सकते हो गवर्नर। जैसे कि अभी क्षेत्र में होता है गवर्नर और वहाँ के जो है मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। यानी चीफ मिनिस्टर को जो है राजपाल ही चलाने की कोशिश करता है और नियुक्ति भी करता है। सेम पूरा ही ढांचा इसी प्रकार की थी। प्रांत मुख्य देश, राष्ट्र और जो है भक्ति के नाम से जाना जाता था, यानी भक्ति के नाम से जाना जाता था। उसका जो है प्रधान उपपारिक कहलाता था। प्राय विभिन्न जिलों में विभक्त हुआ करते थे जिन्हें प्रदेश अथवा विश कहा जाता था। विश का प्रधान विशपति के नाम से जाना जाता था उस समय, और विश भी ग्रामों में विभक्त हो रखा था। यानी जो विश होता था ग्रामों में जो है बटा हुआ था। ग्राम प्रमुख के जो है ग्राम अध्यक्ष कहलाता था। ग्राम के वरिष्ठ नागरिक की सहायता से ग्राम के विषय की जिम्मेदारी निभाया करता था। यानी गांव में जो है किसी बुजुर्ग के सहायता से पूरा कार्य प्रणाली चलाई जाती थी। गुप्त काल के दौरान जो है कलाकार अथवा व्यापारी नगर प्रशासन में सक्रिय जो है भूमिका निभाया करते थे और मौर्य की तुलना में गुप्त अधिकारी वर्ग कम बड़ा था। लेकिन गुप्तों के अधीनस्थ उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी कुमार अमात्य से संबंधित होते थे। महत्वपूर्ण पदाधिकारी यथा मंत्री होते थे या सेनापति होते थे या जो है सभी इसी वर्ग में संचलित हुआ करते थे। देखा जाए तो प्रशासनिक पद मात्र जो था वंशागत ही नहीं होते थे, बल्कि प्रायः कई कार्यालय संयुक्त रूप से एक ही व्यक्ति द्वारा संचलित होते थे। ये बहुत बड़ी विडंबना थी। कहते हैं आज के समय में भी देखा जाए तो कुछ इसी तरह से जो है कार्य प्रणाली चलाई जाती है कि एक मंत्री के अंतर्गत जो है कई विभाग जो है उनके हाथों में होती है। तो आज के आधुनिक युग में देखा जाए और पुराने जो है गुप्त काल में देखा जाए तो कुछ इसी तरह के जो है दृश्य आपके समक्ष देखने को मिल रहा है कि आज के समय अगर हम देखें जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक मंत्री के अंतर्गत कई विभाग होते हैं।
अगर आपको ये बात गलत लग रहा होगा तो आप नेट पे रिसर्च करके भी देख सकते हो कि कई मंत्री के अंतर्गत दो दो तीन तीन विभाग जो है दिया जाता है। तो कहते हैं वो तीन तीन विभाग दो दो विभाग कैसे संभालेगा। ये तो बहुत बड़ी समझदारी की बात है कि लोगों से एक विभाग संभालना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर तीन तीन चार चार विभाग को एक व्यक्ति संभाल रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना होती है और बहुत बड़ी खामी होती है किसी भी प्रशासन के लिए। और यही गलती जो है यहाँ पर ये भी किया हुआ था कि वंशागत तो होते ही थे। प्रायः यहाँ कई कार्यालय संयुक्त रूप से एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित किए जाते थे, जैसे कि इलाहाबाद स्थित समुद्रगुप्त के आलेख का रचयिता और हरिसेन उसका जो उल्लेख के महादंड नायक यानी युद्ध तथा शक्ति मंत्री हुआ करता था। यानी युद्ध भी करता था और शक्तिशाली इसी के हाथ में जो होता था। इसी कारण से इसको जो कहते थे महादंड नायक के नाम से वो काफ़ी विख्यात था। प्रायः उच्च पदाधिकारी का चयन शासक स्वयं किया करता था। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि उच्च जो है पदाधिकारी का चयन शासक स्वयं ही किया करता था, किंतु पद वंशागत होने से प्रशासन में शाही नियंत्रण दुर्बल होता चला गया, क्योंकि सारे वंशागत होते थे। यानी उसके दादा परदादा नाना दादा ही जो थे इसी पद पे आसीन थे। तो आपको पता होगा कि अगर ऐसे व्यक्ति होंगे तो क्या सभी पावरफुल ही होंगे? ऐसा संभव नहीं था, जिसके वजह से गुप्ता वंश का जो है विघटन होना एक स्वाभाविक बात था। कहते कोई भी अगर हम देखें प्रशासन का तो उसका जो है मंत्री के द्वारा चलाया जाता है और वो भी कमज़ोर होंगे तो उनका चलाना संभव नहीं होगा। कहते जो है गुप्ता काल में भू करों में व्यापक वृद्धि हो गई थी। यानी देखिए सबसे बड़ा कारण ये भी था। कहते गुप्त वंश का सबसे बड़ा जो विघटन कारण था वो था करों में व्यापक वृद्धि। अब देखिए आज के साथ इसकी तुलना कीजिए। आज अगर आप देखिएगा तो आपके समय में भी बहुत करों की जो है वृद्धि कर दी गई है। तभी हर चीज़ महंगाई की जो है अपनी सीमा से परे चली गई है। आज कोई भी चीज़ खरीदना एक आम इंसान की पहुंच से बाहर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस सरकार की विघटन नहीं होगा? कहते हैं जो गलत होगी उसकी विघटन होना सुनिश्चित होगा। कहते हैं भू कर अथवा बलि कुल उत्पाद का 1/4 और 1/6 हिस्सा तक भिन्न था। गुप्त काल में हमें आलेखों से 2 नए करों कृषि करों का और भी हमें आभास होता है। इसे हम जो है उपरी कर और उद्रगढ़ कर भी कहते हैं। जैसे आज के समय में देखोगे तो पहले टैक्स के रूप में था, आज जीएसटी के रूप में बदल दिया गया है। तो कहते हैं काफ़ी मिलता जुलता जो है इस समय और उस समय के जो है दिखाई दे रहा है। यद्यपि उनका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट नहीं है। साथ ही एक कृषक वर्ग के समानताओं की आवश्यकताओं को जो भी पूर्ण करना होता था, उन्हें गाँव से शाही सैन्य बल भोजन भी कराया होता था। यानी जो शाही बल के जो होते थे उनको भी भोजन कराना होता था जिस गांव से जो गुजरते थे। ये बहुत बड़ी विडंबना था कि सेना जिस गांव से गुजरते थे वहां पर जो है किसानों पर ही इसका भार पड़ता था और उनको भोजन कराना उनका कर्तव्य उस समय बनाया गया था। ग्रामवासियों ने बेगार कार्य भी लिया जाता था, यानी बेगारा काम भी किया जाता। अपने पीछे समय की तुलना में गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था अधिक उन्नत थी। अपने पिछले समय की तुलना में प्रथम बार दीवानी तथा आपराधिक विविध नियमों का स्पष्ट वर्गीकरण हुआ था। विभिन्न प्रकार की जो है संपत्तियों से संबंधित जो है विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आए। उत्तराधिकारियों से संबंधित वित्तीय नियम की रचना इस युग में हुई, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चोरी तथा जो है व्यभिचार आपराधिक जो है न्याय विधान के अंतर्गत आए थे। यानी उस समय चोरी के भी जो है एक विधान बनाया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। राज्य ने जो है नियमों के मजबूत बनाया तथा ब्राह्मणों की सहायता से विषय का जो है निराकरण भी किया गया। कारीगरों तथा व्यापारियों के संगठन जो है स्वयं निर्मित जो है नियमों द्वारा नियंत्रित होते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हर्षवर्धन ने इसी पद्धति पर अपने साम्राज्य का संचालन भी किया था, किंतु उसके शासनकाल में प्रशासन में विकेंद्रीकरण गति में प्रगति हो गई तथा समागत और जागीरों की संख्या में भी वृद्धि हुई। हर्षवर्धन के शासनकाल में अधिकारी तथा धार्मिक व्यक्तियों की भूमि के रूप में भी भुगतान किया जाता था। इसे जो है समानती प्रथा को प्रोत्साहित दिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर अ सोसाइटी इज अ लेसन ऑफ द गुप्ता एंड देयर इज अ सनसेशन। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर a society. The structure of their society was undergoing a change in the Gupta period. The supremacy of the Brahmins was increasing, and they were getting a large scale and land grant not only for the rulers but from to other peoples also.
The land was given along with the administrative right and tax expansion, and thus a new class of Brahman, landlord, and the created. Supported by the kings, there attended exploration of peasant. That is the most important here. We also notice the proliferation of the caste in period, and with the extension of the Brahmicals, and the culture is a distant and the different area. As a large number of tribes were assimilated in, there is a Brahmicals and social structure of Varna system of fold. As where some of foreigner such as the Huns and welder foreigners and the tribals is inherited were included as a Kshatriya. There is ordinary tribes where is given to the statue of the Shudra. The status of the Shudra is the most important here. The position of the Shudra, however, improved somewhat is during the period, and there is allowed to the listen to the epics and the Purans. They could also perform to the some domestical rituals that were earlier is prohibited for them. In the 7th century, Hushan Tusan is called a Chudra was an agriculturist and there are Vaishya as trader. A distinction was also made is between the Chudra and the untouchable, and the latter is began to treat to lower in the status than the Chudras. The untouchables are referred to the is a Chandas, and there is a leave to the outside of the village. There are delta and the unclean jobs such as the canvassing of the butcher. There are a Chinese travel for his tell us to that is whenever their entry of the towns or marketplace, there would be strikes of piece of wooden to the announce their arrival, and so that other might not be touched them and get polluted. There is the most important for here on the Chandal. The reference to be a slave are found in the contemporary of Dharam Shastra is a law book. The Dharam Shastra here a law book on this time. Narda is a mention of 15 types of the slave, and there were mainly a domestical servant as employed in the cleaning and sweeping. The parishioner of the ward, depth of the bondsman, and one of their slave women were all the considered as slaves. The status of the women continued to the decline in a Gupta period. The main reason for their subordination of the women was there is a complete dependent on the man for their livelihoods, and the women were not entitled their inherit to the property. However, she had a fully of right on her Sri Dhan, and he is the present is received by the bride at the time of the marriage. Their free representation of female in art suggests that there is a no is a pradha system in there is the society. The Pardha system is the most important here on this time. However, there is evidence of the presence of the Sati system. The first evidence of Sati evolution of the Vidyas in the found in the inscriptions AD 510 at the era in the Madhya Pradesh. In the Harsh Charitra of the Bana, there is a queens perform a Sati on their death of the husband king Prakash Vardhana, even to Rajasri, sister of Harshvardhana, and was about the performer Sati went to the Harsh rescue here. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है समाज, अब सोचिएगा समाज किसके अंतर्गत आया है, तो ये गुप्त वंश उनके उत्तराधिकारी के आया है कि उस समय गुप्त वंश जो हम कर रहे हैं उसमें जो समाज में क्या विशेषता थी, क्या समाज सही था, तो इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार पूर्वक कि समाज की स्थिति उस समय क्या थी और किस प्रकार के समाज जो है उस समय के गुप्त वंश ने स्थापित किया था और बनाया था। कहते हैं गुप्त काल में समाज का जो है तनावाना एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, यानी परिवर्तन काफ़ी देखने को मिलता है। ब्राह्मणों की संस्था में वृद्धि हो रही थी, उन्हें न सिर्फ शासकों के बल्कि साधारण जनता भी दान के रूप में जो है भूखंडों के प्राप्ति हो रही थी। यानी देखा जाए तो ब्राह्मण जो थे अपनी जो है चपलाई से जो है काफ़ी ऊपर उठ चुके थे और भूखंड उन्हें जो है प्रबंधन को अधिकार तथा करों में छूट से सहित प्राप्त होते थे, यानी उनको कर भी देने की जो है परमिशन नहीं थी। अंत भूस्वामी ब्राह्मणों के नए वर्ग का निर्माण हुआ। शासक का समर्थन प्राप्त होने के वजह से उनमें जो है किसानों के शोषण की प्रवृत्ति भी जन्म ले लिया।
यानी किसानों को वो शोषण भी किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो राजा के जो थे संरक्षण में आ गए थे। इस युग में हम जातियों में भी वृद्धि पाते हैं। इस समय जाति भी काफ़ी वृद्धि हो गई थी। सुदूर एवं विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणवादी सभ्यता के विस्तार के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में आदिवासी जनजातियों तथा कुछ विदेशी आक्रमणकारी जैसे हूण वंश वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित हो गए। जहां विदेशी तथा जनजाति के मुखिया क्षत्रिय कहलाए, वहीं साधारण जनजाति के लोगों को क्षुद्रों की स्थिति प्राप्त हो गई। तो ये जरूरी थी, उस समय बांटा गया था, लेकिन कहा जाए तो मुखिया को क्षत्रिय कहलाया और जो क्षुद्र को जो है निम्न जाति में विभक्त कर दिया गया। यद्यपि कुछ हद तक क्षुद्रों की स्थिति में इस युग में थोड़ा सुधार दिखाई पड़ता है। उन्हें महाकाव्य तथा पुराण सुनने की अनुमति जरूर थी। वे घरेलू कर्मकांडों को भी करवा सकते थे, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो पूर्व में उनके लिए प्रतिबंधित थे। हमने पूर्व की पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें देखा गया था कि उनको जो है कोई भी यज्ञ कराने की अनुमति नहीं होती थी, न पुराण सुनने की होती थी। 7वीं शताब्दी में जो है हसवन संघ ने जो है क्षुद्रों को जो है कुशाक तथा वेश्या के व्यापारी कहा और क्षुद्रों तथा सर्विस को जो है मध्य भी अंतर किया गया था। कहते शत्रु के समाज में क्षुद्रों में भी विभिन्नता काफ़ी देखने को हमें मिला है। अनटचबिलिटी के अंतर्गत जो है चंडालों को जो है अलग रखा जाता था, यानी चंडाल जो है अलग रहते थे और क्षुद्र जाति से संबंध रखते थे। उनका निवास जो है गांव से बाहर होता था तथा वो जो थे वे नाली साफ करना तथा जो है साईगिरी जैसे कार्य किया करते थे। देखिए ये जो था जो आज के समय में बहुत भिन्न दिखाई देता है, उसको जो है निवास जो होती थी काफ़ी गांव से दूर रखा जाता था और कहते हैं उनसे सिर्फ साफ कराने गली उली साफ कराने की ही काम लिया जाता था। चीनी यात्री फरहान ने के अनुसार जब वे जिले अथवा व्यापारिक केंद्र प्रवेश करते थे तब वह अपने आने की घोषणा लकड़ी के टुकड़ों को बजाकर किया करते थे, जिससे कि अन्य उनसे जो है दूर हो जाए और भ्रष्ट न हो। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी उस समय चंडालों के लिए। कहते हैं दासों का संदर्भ भी समकालीन धर्मशास्त्रों में मिलता है। कहते हैं नारद के अनुसार 15 प्रकार के दास हुआ करते थे। उनमें मुख्य जो है गृह कार्य हेतु अथवा सफाई करने और झाड़ू लगाने हेतु दास हुआ करते थे। युद्ध के कैदी, कर्जदार दास, माँ की कोख से जन्म लेने वाले सभी दास ही समझे जाते थे। उस समय ये प्रावधान किया गया था कि दास माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति जो होता था दास होता था, चाहे उसकी बुद्धि उच्च कोटि की क्यों न हो, उसको दास ही समझा जाता था। कहते हैं अगर देखा जाए गुप्त काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी स्त्रियों के अंतर्गत देखा जाए तो गुप्त काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। स्त्रियों की जो है अधीनता का मुख्य कारण पुरुषों पर उनकी जो है पुण्य निर्भरता रही, क्योंकि सारे के सारे निर्भरता जो था पुरुषों पर था। स्त्री किसी भी कार्य नहीं किया करती थी। संपत्ति के पैतृक रूप से जो है पाने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। यद्यपि स्त्री धन अथवा विवाह के समय प्राप्त उपहारों पर उसका जो है पूर्ण अधिकार था। कला में स्त्रियों का जो है मुक्त चित्रण समाज में पर्दा प्रथा न होने के संकेत देते हैं, लेकिन कहते हैं पर्दा प्रथा उस समय नहीं विकसित थी। यद्यपि सती प्रथा का अस्तित्व अवश्य मिलता है। मध्य प्रदेश के एरांस में अंकित एक उल्लेख यानी सन जो है 510 में प्रथम सती का प्रमाण हमें मिला है। कहते हैं वानभट्ट के हर चरित्र में रानी अपने पति राजा जो है प्रभावर्धन के मृत्यु पर सती हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी यहाँ प्रमाण दिखता है। यहाँ तक कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री भी सती प्रथा का पालन करने जा रही थी जब हर्षवर्धन ने उनका जान बचा ली थी। तो इससे पता चलता है कि उस समय जो है सती प्रथा भी समाज में प्रचलित हुआ करती थी।